آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ سابق وزیر اعلیٰ کے CR فون ٹیپنگ معاملے میں آج خصوصی ٹیم کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ انتخابی مصروفیات کا دیا حوالہ، خصوصی ٹیم کر رہی ہے ایک اور نوٹس کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آندھرا کے وزیر اعلیٰ کے پالتو آندھرا پردیش کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تلنگانہ کے ساتھ دھوکہ، ہریش راؤ کا الزام۔ فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب شو رومز اور دکانوں پر ہائیڈرا کا کریک ڈاؤن، کوکٹ پلی، اتاپور اور گچی بولی میں دکانیں مہر بند۔ میڈچل ضلع شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرقے کی سنگین واردات، 20 تولے کے طلائی زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد رقم لے کر سارق فرار۔ نظام حیدرآباد کے زیورات RBI کے سخت ترین سیکورٹی میں محفوظ، عوامی نمائش پر ابھی فیصلہ باقی، مرکزی وزیر ثقافت نے دیا بیان۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر قوم نے پیش کیا خراج، تلنگانہ اسمبلی میں گاندھی مجسمے پر گلہائے عقیدت کیے گئے پیش۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ نظام کے نوادرات اور زیورات اس وقت ریزرو بینک آف انڈیا کے محفوظ والٹس میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ ان قیمتی زیورات کی تاریخی، ثقافتی اور وراثتی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سخت سیکورٹی کے درمیان محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ جانکاری مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب کے ذریعے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان زیورات کو حیدرآباد میں عوامی نمائش کے لیے رکھنے کے تعلق سے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر نے ایوان کو بتایا کہ حکومت اس بات سے واقف ہے کہ نظام حکمرانوں سے وابستہ 173 نایاب اور شاندار زیورات 1995 سے RBI کے والیٹس میں محفوظ ہیں۔ راجیہ سبھا کے بعض ارکان نے وزیر سے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت کو اس حقیقت کا علم ہے، جس پر انہوں نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ واضح ہے کہ نظام حکمرانوں نے طویل عرصے تک حیدرآباد پر حکومت کی، تاہم آزادی کے بعد یہ خطہ بھارت میں ضم ہو گیا۔ فیس ری امبرسمنٹ کے بغاوت کے بہانے طلباء کے اصل سرٹیفکیٹس روکنے والے پرائیویٹ کالجوں کے رویے پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ فیس موصول نہ ہونے کا جواز بنا کر طلباء کو ہراساں کرنا غیر قانونی ہے، اور اس ضمن میں ریاستی حکومت کو اہم احکامات جاری کیے گئے۔ فیس کی عدم ادائیگی کے نام پر سرٹیفکیٹس نہ دینے والے کالجوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف طلباء تنظیموں نے ہائی کورٹ میں عرضیاں داخل کی تھیں۔ ان عرضیوں کی سماعت کے دوران عدالت نے اہم ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ کی سربراہی میں قائم بینچ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ سرکار کی جانب سے واجب العلاوہ فیس ری امبرسمنٹ کی کل رقم کتنی ہے اور یہ رقم کب تک ادا کی جائے گی، اس بارے میں 2 ہفتوں کے اندر مکمل تفصیلات پیش کی جائیں۔ عدالت نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو فیس بخراجات کے عوض
तलबा के सर्टिफिकेट्स रोकने या उन्हें बतौर ज़मानत रखने का कोई हक़ हासिल नहीं है। अदालत ने तबसरा किया कि सर्टिफिकेट्स रोके जाने से तलबा का मुस्तक़बिल और रोज़गार के मौक़े बुरी तरह मुतासिर होंगे। रियासत तेलंगाना में भी महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया गया। गवर्नर जश्नदेव वर्मा, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरे लीडर्स ने बापू घाट पर वाक़ई महात्मा गांधी की यादगार और तस्वीर पर फूल डाले। महात्मा गांधी की खिदमात को खिराज भी पेश किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर रियासती असम्बली के अहाते में मौजूद गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले गए। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार, कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंद्र रेड्डी, कौंसिल के नायब सदर नशीन बी प्रकाश के अलावा अरकान मुखन्ना भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR को फ़ोन टैपिंग मामले में खुसूसी टीम की तरफ से जुमेरात को नोटिस दी गई थी। ताहम रात में साबिक़ वज़ीर आला ने सिट को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि बल्दी इंतखाबात की वजह से वो पूछताछ के लिए पेश होने से क़ासिर हैं, उन्हें बाद में तलब किया जाए। अब इत्तला है कि खुसूसी टीम साबिक़ वज़ीर आला को फिर से नोटिस देने की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब BRS पार्टी के रुकन कौंसल D शरवण ने कहा है कि साजिश के तहत साबिक़ वज़ीर आला KCR को नोटिस दी गई है। KCR को नोटिस देने का दिन तेलंगाना की तारीख़ में सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कांग्रेस इनहराफ की सियासत में मसरूफ़ है और इसे अखलाक़ी सियासत का शऊर नहीं है। तेलंगाना की आवाम सब कुछ देख रही है और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। కాగజ్ నగర్ ప్రజలారా మీకు చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మరొక్కసారి ఆలోచించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళను ఆశీర్వదించాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి నోటీస్ కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చిన నోటీసును మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము. ఇటువంటి నోటీసులు ఎన్నొచ్చినప్పటికీ కూడా అదిరేది బెదిరేది లేదని చెప్పని మరొకసారి కాగజ్ నగర్ సాక్షిగా తెలంగాణ సమాజానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. బీఫామ్లు టీఆర్ఎస్ వర్గంలో బీఫామ్ కంపెనీ ఎవరు జరగాలి అభ్యర్థి BRS पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का पालतू करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि दिल्ली में आज पानी के मसले को लेकर इजलास चंद्रबाबू नायडू के दबाव की वजह से हो रहा है। हरीश राव ने सवाल किया कि तेलंगाना के ओहदेदार आखिर क्यों दिल्ली के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आबी तनाज़े के नाम पर दिल्ली में इजलास बुलाया गया है, लेकिन इसका अहम एजेंडा पोलावरम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करना है। पोलावरम प्रोजेक्ट का नाम तो बदला गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश मुसलसल तेलंगाना का पानी लूट रहा है। रेवंत रेड्डी जानबूझकर चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए तेलंगाना के साथ धोखा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी हमेशा चंद्रबाबू नायडू को खुश करने की पॉलिसी पर अमल करते आए हैं। BRS लीडर ने कहा कि इब्तिदा से ही रेवंत रेड्डी पोलावरम और नल्लामल्ला सागर के मामले में आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కేంద్రంగా
తెలంగాణకు జరగబోతున్నటువంటి ద్రోహాన్ని పసిగట్టి బయటపెట్టి దాన్ని నివారించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఆ తప్పు జరిగితే తెలంగాణ నీటి చరిత్రలో ఈరోజు ఒక బ్లాక్ డేగా నిలిచిపోతుంది. గోదావరి జలాల అక్రమ తరలింపు విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూనే వస్తుంది. మీకు కూడా తెలుసు, నేను గతంలో కూడా డాక్యుమెంట్స్ కూడా బయట పెట్టాను. ఎందుకు అంటే మేము మాట్లాడు బ్యాక్ డేట్లో ఉత్తరాలు పంపుడు, ఇవన్నీ మీకు గతంలో కూడా పంపిన. నేను ఇదే భవన్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టంగానే ఒక 3 అవర్స్లో నిన్నటి డేట్తో ఉత్తరం రాస్తాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. మాకేమో స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక వాళ్ళకు పట్టింపు లేదు. మేము పదే పదే ఆ విషయాలు బయట పెడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము అప్రమత్తం చేస్తుంటే ఇంకేదో ఫేస్ సేవింగ్ కోసం బ్యాక్ డేట్లు వేసి నా ప్రెస్ మీట్ అయినాక 5 గంటలకు 3 గంటలకో 4 గంటల తర్వాత ఇన్ని ప్రెస్ నోట్లు లెటర్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ రాష్ట్రం రాసింది. డాక్యుమెంట్స్ కూడా అన్నీ నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను. बीआरएस पार्टी के एमएलए कौशिक रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि मुबैना इन्हराफ करने वाले एमएलए डी नागेंद्र को नाअहल करार देने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बीआरएस के रुकन असम्बली होते हुए नागेंद्र ने कांग्रेस के टिकट पर हल्के सिकंदराबाद की लोकसभा नशिस्त से मुकाबला किया था और उससे जुड़े तमाम सबूत हम स्पीकर को पेश करेंगे. स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के रुकन असम्बली महेश्वरम रेड्डी ने भी डी नागेंद्र को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन आज वो स्पीकर के रूबरू पेश नहीं हुई. इससे वाज़ेह नज़र आता है कि बीजेपी और कांग्रेस में फिक्सिंग हो चुकी है. बताया गया है कि बीजेपी के रुकन असम्बली की दरख्वास्त पर फरवरी की 17 तारीख को डी नागेंद्र को बुलाया जाएगा. महेश्वर रेड्डी की तरफ से बल्दी इंतखाबात के तनाजुर में स्पीकर से 20 फरवरी तक का वक्त तलब किया गया था. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు హాజరు కాకుండా మాకు మరొక డేట్ ఇవ్వండి మరియు 18 తారీఖుకి మా డేట్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు పిటిషన్ వేసారు. అంటే ఎంత స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేది మరొకసారి క్లియర్గా కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే దానం నాగేందర్ గారి డిస్క్వాలిఫికేషన్ క్లియర్ కట్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉండుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా పోటీ చేయడం వల్ల క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ అయిపోయింది. కాబట్టి డిస్క్వాలిఫై కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుందని ఇలా టైం బై చేయడానికి ఇలా మళ్ళొక్కసారి బీజేపీ तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि मेडाराम यात्रा के लिए कोई भी वजीर नहीं आया है. मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि वज़रा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपस में लड़ते हैं. एंडोमेंट के वजीर ने भी दौरा नहीं किया. 250 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया गया था. 200 बैतुल खला भी तामीर नहीं किए गए. कविता ने कहा कि मरकज़ मेडाराम यात्रा को कौमी दर्जा देने में भी नाकाम रही है. तेलंगाना एब्सेट के लिए फ़ीस के अदखाल और इम्तिहानी शेड्यूल को मंजूरी दे दी गई है. JNTU वाइस चांसलर और सेट कमेटी के सदरनशीन बालाकृष्ण रेड्डी की निगरानी में जुमे को इजलास हुआ. इजलास में सेट कमेटी के अरकान ने शेड्यूल को मंजूरी दी है. 23 फरवरी को एलामिया जारी किया जाएगा. 27 फरवरी से तलबा ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं. बग़ैर जुर्माने के फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई मुकर्रर की गई है. इम्तिहानात 28 मई से 31 मई तक मुनक़िद होंगे. फायर सेफ्टी क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले शोरूम्स पर क्रैकडाउन जारी है. हाइड्रा ने सेलिंगमपल्ली के मुख्तलिफ फर्नीचर की दुकानात का मुआयना किया है. गच्चीबौली के इलाके में लुकिंग गुड फर्नीचर शोरूम को मोहरबंद कर दिया गया.
कोकटपल्ली और अत्तापुर के रॉयल ओक शोरूम पर ताला लगा दिया गया। अत्तापुर में अन्नू फर्नीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उसे भी मोहरबंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी हाइड्रा की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के तनाजुर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी जारी है। राजौंदा सिलसिला ज़िले में SST टीम ने रागोटू चेक पोस्ट पर गाड़ियों के मुआयने के दौरान एक गाड़ी से 20 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है। पुलिस और इंतखाबी ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए न्यू बॉक्स ड्रेन के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में भी मुख्तलिफ हिदायतें दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हो गया क्यों नहीं कराते? पूरा 5 साल मेरा टाइम यही काम कराते रहते क्या? बोले बोलते आगे साइड में देखिए का काम लोग कैसे निकलेंगे घरों से? बोलो आप क्या अल्टरनेट दे रहा लोगों को घर से निकलने का? भैया घर से निकलना है तो क्या अल्टरनेट है? मूल्य कहाँ पे है? मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफर हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चिंचलम डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थीं। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं।
ऐसा नहीं, आज की रात में बालों से ज्यादा गुनाहगारों की। फिर आका ने सलाम ने क्या फरमाया साहब? सरकार फरमाए इस रात में हर हिकमत वाला काम तकसीम किया जाता है। सिकंदराबाद ताड़बन और बोयनपल्ली खबरस्तान की अराजी नेशनल हाईवे 44 प्रोजेक्ट की तोसी के तहत आने का जवाब पेश करते हुए 1 एकड़ अराजी हासिल करने के सिलसिले में नोटिस दी गई थी, जिस पर एडवोकेट आशिर खान ने अदालत से रुजू होते हुए रोक हासिल की। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसील बताई। आज से करीब 1 साल के आसपास एक पेपर में नोटिफिकेशन आया था कलेक्टर ऑफिस से कि यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा, उसके चलते रोड वाइडनिंग होने वाली है। वो रोड वाइडनिंग की वजह से 2 खबरस्तान, मुस्लिम ग्रेवयार्ड और एक बोयनपल्ली ताड़बन कमेटी के तहत जो 2 खबरस्तान है, एक खबरस्तान 4 एकड़ पे है और एक खबरस्तान 8 एकड़ पर है। ये दोनों खबरस्तान जो है रोड वाइडनिंग के उसमें 1-1 एकड़ जाने वाले हैं। उसके बाद इन टाइम मस्जिद के जो खबरस्तान के जो सदर है वो लोग जाके अपना ऑब्जेक्शन रेस करे। उसके बाद उनकी एक हियरिंग हुई, कलेक्टर की हियरिंग हुई। उसके बाद कलेक्टर हैदराबाद ऑर्डर पास करे कि आपके जो ऑब्जेक्शन है इसको रिफ्यूज़ किया जाता और पब्लिक वेलफेयर के लिए हम ये 1-1 एकड़ दोनों खबरस्तानों में से लेके रोड वाइडनिंग करने वाले हैं। अब फिक्र की बात ये थी कि जो खबरस्तान की बाउंड्री वॉल है उसको एकदम लगकर, पुराने खबर भी है, नए खबर भी है। आप देख सकते हैं 6 महीने के आसपास की भी खबर है, 400 साल पुराने भी खबरें हैं, वो पूरे साफ़ होने वाले हैं बोल के। उसके बाद ये लोग हमारे पास आए। मेरे पास आने से पहले मुख्तलिफ सियासतदानों के घरों पे, दफ्तरों पे चक्कर मारे। अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको कुछ वहाँ से राहत नहीं मिली। उसके बाद में फिर मेरे पास जब आए, मैं हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल आप जिसको बोलेंगे वो फाइल किया था। पिल की हियरिंग हुई और फिर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए कि इसको रिट पे कन्वर्ट करके हियरिंग आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद इसकी पिछले 2 हफ्ते से हियरिंग हो रही थी और कल मैं परसों जो है शाम में करीब 4 बजे इसकी हियरिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमको स्टेटस को जो बोलते हैं या मोटी ज़बान में बोले तो स्टे ऑर्डर इसके ऊपर मिला। एज ऑफ नो ये केस पेंडिंग है, हमारे पास स्टेटस को है। तेलंगाना संगारेड्डी की तेलापुर झील के पास गैर मजाज ढांचे को हाइड्रा की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। बताया जाता है कि मुकामी आवाम की शिकायत पर हाइड्रा की तरफ से ये कार्रवाई की गई। ये भी इत्तला है कि झील की अराजी पर तामीराती अशिया को फेंका जा रहा था। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगानाथ ने इस सिलसिले में पहले ही इंतबाह दिया है कि गैर मजाज तामीरात और तामीराती अशिया को झीलों के पास फेंके जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तलाशी और जांच के दौरान 3 नौजवान पुलिस मुलाजिम के साथ बहस व तकरार करते हुए देखे गए। ये भी पता चला है कि तीनों नौजवान मुबैना तौर पर एक ही बाइक पर जा रहे थे और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम ने जब उन्हें रोका तो वो उससे बहस व तकरार करने लगे। नौजवानों का इल्ज़ाम था कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जबकि ट्रैफिक कांस्टेबल ने कहा है कि वो सिर्फ
चालान अदा करने को कह रहा था। नौजवान भड़क गए और उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या आप ऐसे लोगों को मुलाजिमत पर रखते हैं। नौजवानों ने आंध्रा के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का भी हवाला दिया। అవన్నీ మాటలేదు అసలు. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతాం వీడియోలో మొత్తం ఉంది బ్రో. అన్ని ఉన్నాయి వీడియోస్. చూడు ఇలాంటి వాళ్ళకి జాబులు ఇస్తే ఎలాగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి జాబులు అసలు ఆయన ఇది లేదు. ఆయన ఒక కానిస్టేబుల్ కాదు ఆయన ఒక కానిస్టేబుల్ కాదు, ఏం కాదు కదా. డబ్బులు అడిగిండు, డబ్బులు ఇచ్చేసి చేతులు అసలు నువ్వు ఎవ్వరివి కనిపిస్తుందా? కూర్చో నువ్వు నాకు అందం పెట్టావా, నువ్వు నాకు ఫీజు కట్టావా? ముగ్గురు నువ్వు నాకు అన్నం పెడుతున్నావా, నన్ను చదివిచ్చావా, నన్ను పోషించావా? ఏమాడుతున్నావు? ఆడు కూర్చో, అక్కడ నుంచో. ఎలా మాడుతావు? పబ్లిక్ ఎలా మాడుతావు? हैदराबाद के नवाही इलाके शामिर पेट पुलिस स्टेशन हदूद बोमारासी पेट में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकीनों की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर सारिख मकान में दाखिल हुए 20 तोले के तिलाई जेवरात 2 लाख रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मुतासरा मकान मालिक नागेश्वर राव ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस और पुलिस टीम ने मुतासरा मकान पहुंचकर मुआयना किया, जबकि आसपास के CCTV का भी जायज़ा लिया जा रहा है। చిన్న మధ్యాహ్నం 3 గంటల దాకా ఫాదర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. 3 తర్వాత ఫాదర్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనం చూడలేదు. 8:30కి ఫాదర్ వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు చూస్తే ఇది డోర్ లాక్ చేసి ఉంది. లోపల నుంచి బయటని తాళం ఎరగొట్టి లోపల నుంచి లాక్ చేసి లోపల మొత్తం అంతా ఇక్కడికక్కడ మొత్తం అన్ని గోల్డ్ అంతా చేసుకున్నారు. ఏం లేదు, గోల్డ్ క్యాష్ పోయింది. గోల్డ్ సుమారు ఒక 20 తులాల దాకా పోయింది. క్యాష్ ఒక 2-2.5 లక్షల దాకా మిస్సింగ్. తర్వాత వచ్చి చూస్తే తెలిసినాక పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి రాత్రంతా ఉన్నారు. మొత్తం అన్ని చూసిరు. ఫారెన్సిక్ వాళ్ళని కూడా పిలిపించారు. వాళ్ళు కూడా అన్ని క్రూస్ టీమ్ అన్ని వచ్చి చూసుకున్నారు. అన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు. కానీ ఎప్పుడు ఇట్లా ఇంత ఘోరంగా అవుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు మేము కూడా చూడలేదు ఇట్లా ఈ పరిస్థితి. బొమ్మరాజ్పేటలేదు ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఇంత ఘోరంగా వాళ్ళు అల్మారా కూడా మొత్తం ఇరగొట్టేసారు. మొత్తం ఇది చేసారు. మొత్తం ఎవరు లేని టైం చూసుకొని, అది కూడా సాయంత్రం పూట, పొద్దున కాదు, రాత్రి కాదు, 6 నుంచి 8 గంటల లోపల. आंध्र प्रदेश के चित्तूर में SR पुरम के पास स्कूल बस और लॉरी के तसादुम में मुतादिद तुलबा जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि BC कॉलोनी के पास लॉरी ने स्कूल बस को टक्कर दे दी। इस वाक़े के दौरान लॉरी उलट गई। इतला मिलते ही सरपरस्त भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और तुलबा को रोते हुए देखा गया। जख्मी तुलबा को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है।
सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,70,620 रुपये बताई जा रही है, जबकि 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,56,400 के आसपास बताई गई है। चांदी की कीमत में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया है। मुख्तलिफ रियासतों में चांदी की कीमत में फ़र्क पाया गया। 30 जनवरी को जहां बाद रियासतों में चांदी की कीमत 3,95,000 किलो तो कहीं 4,15,000 से 4,25,000 तक देखी गई। हैदराबाद में भी चांदी की कीमत फ़ी किलो 4,15,000 के आसपास बताई गई है, जबकि दूसरी रियासतों में फ़र्क देखा गया है। इम्कान है कि दिन भर में कीमतों में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। तेलंगाना में 2 नौजवानों की मुबैना हिरासानी से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के AR डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम देने वाली अनीता, जो ज़िले वरंगल के पार्वतीगिरी मंडल के सीतैया तांडा की रहने वाली थी, मुसलसिल जहनी दबाव का शिकार थी। बताया है कि महबूबाबाद ज़िले के तोरूर और मंडल के कोमनपल्ली तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले उनके दूर के रिश्तेदार राजेंद्र ने गुज़िश्ता 4 बरसों से शादी का झांसा देकर उन्हें हिरासा किया। ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉल करने पर जोर दिया और किसी से बात ना करने की पाबंदी आयद की। अनीता के वालिदैन ने राजेंद्र के रवैये से तंग आकर उससे शादी से इनकार कर दिया था। इस दौरान राजेंद्र को मालूम हुआ कि अनीता अपने दोस्त जब्बारलाल से करीबी ताल्लुक़ रखती है, जिस पर उसने जब्बारलाल को फ़ोन करके अनीता के बारे में गलत मालूमात दी। उसके बाद जब्बारलाल ने भी अनीता को हिरासा करना शुरू कर दिया और शादी के बदले रकम का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक अनीता ने राजेंद्र को फ़ोन करके कहा कि तुम दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, मगर राजेंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। उसके बाद अनीता ने जहरीली दवा पीकर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस ने राजेंद्र और जब्बारलाल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फारूकी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम हर इतवार आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम पर वाक़े दारुल अमन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। फारूकी फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने बताया कि फ़ाउंडेशन बग़ैर किसी मुनाफे या नुकसान के मियारी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस शोबे में उन्हें 40 साल का तजुर्बा है, जबकि इस शोबे में धोखाधड़ी भी आम हो चुकी है और भरोसेमंद अफराद ही से इस सिलसिले में रुजू होना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9247774712 पर रब्ता किया जा सकता है। फारूकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर इतवार सुबह 10 से 4 बजे दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में लड़के और लड़कियों का आमने सामने प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे लड़के और ढेर सारे लड़कियों के रिश्ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सेकंड मैरिज के लिए भी मर्द व ख़वातीन के बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अवामुन्नास खासकर शहर हैदराबाद के शहरियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने होनहार बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और बेहतर से बेहतर रिश्तों का इंतखाब करें। और इसकी एक बुनियादी सहूलत यह है कि ये मेहदीपट्टनम में होने की वजह से यहाँ पर अतराफ की और अकनाफ के अच्छे मोतबर और पढ़े लिखे रिश्ते यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपके बाद की ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकती हैं। एक अहम बात जो है वो ये है, लड़के और लड़कियों के इंतखाब में आप इस बात को महसूस रखिए कि दीनदारी भी हो और शराफत भी हो। ये 2 तरह की बातों को फारूकी फाउंडेशन यहाँ पर अपने रिश्तों में इस बात को महसूस रखता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएँ और इसके साथ साथ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिश्तों का इंतखाब करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में।
साबिक वज़ीर आला KCR फ़ोन टैपिंग मामले में आज खुसूसी टीम के रूबरू पेश नहीं हुए। इंतखाबी मसरूफियात का दिया हवाला। खुसूसी टीम कर रही है एक और नोटिस की तैयारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आंध्रा के वज़ीर आला के पालतू आंध्र प्रदेश के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना के साथ धोखा, हरीश राव का इल्ज़ाम। फायर सेफ्टी क़वायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब शोरूम्स और दुकानों पर हाइड्रा का क्रैकडाउन। कोकटपल्ली, अत्तापुर और गच्चीबौली में दुकानें मुहरबंद। मेडचल ज़िले शामीरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में सरखे की संगीन वारदात। 20 तोले के तिलाए जेवरात और 2 लाख रुपए नगद रकम लेकर सारिक फरार। निज़ाम हैदराबाद के जेवरात RBI के सख्त तरीन सिक्योरिटी में महफूज। अवामी नुमाइश पर अभी फैसला बाकी। मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त ने दिया बयान। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कौम ने पेश किया खिराज। तेलंगाना असम्बली में गांधी मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत किए गए पेश। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।